Hello friends, in today's lecture we are going to discuss about the circular permutation, and before starting this topic my assumption is that you have a basic idea of what is the permutation. Means you should be knowing how NPR comes, what is N, what is R. So in this case if there are N different objects and you have to place you have to arrange in a R places, so the total number of ways to arrange that objects is NPR, that is the total number of ways. So suppose there are 5 different things, and if I ask you to arrange these 5 different objects at the 5 places. So basically here N is 5, R is 5, so it's 5, P 5, so that is factorial 5. So 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 120 number of ways you can arrange these objects if I say about that in a linear arrangement. But when we talk about the circular permutation, so instead of linear, you have to arrange in a circular manner. So suppose the name of these objects is suppose A, B, C, D, A. So you have to arrange in a circular table. So how it is different from the linear arrangement, how the circular permutation is different from the linear permutation. So in case of the linear, if there are 5 objects, so total number of ways to arrange in a linear combination is factorial 5. Suppose there are 5 persons A, B, C, D, E, and you have to arrange them in a table. Okay, that is a circular table. So if it would have been a linear arrangement, then we know the answer. It is 120 number of ways you can arrange this thing. But then to sit on a circular table, so how it is going to be like that? So suppose you place something like that, A, B, C, D, E. Okay, so in case of linear, you see A, B, C, D, E, there are 5 places. Another way you can place them B, C, D, E, A, C, D, E, A, B, D, E, A, B, C, or E, A, B, C, D. Then again it will come. So what happens in linear case, these are 5 cases, 5 different cases. But when you ask them to sit on a circular table, what happens? See, A, B, C, D, E. Suppose you ask them to sit, so they will sit like that. Now, if you ask them to sit on this one, so it's B, C, D, E, A. So essentially in case of linear, these two are different things, but in case of circular, you see, it's A, B, C, D, E. Here you say B, C, D, E, A, but if you see in another way, it's A, B, C, D, E. Basically, this person is shifted to here. But in both cases, it basically in a linear combination, it look different, but in a circular cases, both are the same thing. So these 5 cases that is different on the linear arrangement, basically that will merge to a single arrangement. So every 5 will merge to single one. So there are total number of factorial 5 arrangement in case of linear. So in case of circular, this will merge. So every 5 is merging to 1. So every 5 factorial will merge to factorial 5 divided. It's a unitary method. See, every 5 is merging with 1. So total number is factorial 5. So it will merge to factorial 5 divided by 5. So if I generalize this concept in case of circular permutation, so what will happen? Suppose there are n different persons or n different objects, and you have to arrange in a circular arrangement. So if it would have been linear, then it's n factorial. Now every n is merging to 1, so it will become to n factorial by n.
So this is nothing but n minus 1 factorial. So total number of circular permutation will be n factorial upon n is equal to n minus 1 factorial. Okay, so the question is, in how many different ways can 5 boys and 5 girls form a circle such that the boys and girl alternate? मतलब boy and girl cannot sit together, okay, and they have to sit in a circle. So it's basically question of circular permutation. Okay, so there is a table. Suppose you have to arrange them in a circular order. So suppose I ask first 5 boys to sit around the table. So with the concept of circular permutation, we can say if there are n objects, so we can place in n minus 1 different ways on a circular permutation. So here there are 5 boys, so they can sit in a factorial 4 ways. So suppose b1, b2, b3, b4, b5. And now we have to arrange 5 girls, but it has to be alternate. So how many places are remaining? One place is here, girl can sit here, 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 places available and there are 5 girls. So number of ways you can arrange girls will be 5 factorial. So total number of ways to sit all the boys and girls will be 4 factorial and into, because of multiplication principle, 4 factorial into 5 factorial. This is the answer. Okay, in this question, 20 persons were invited to a party. In how many ways can they and the host, so there are total 20 persons and one host, be seated at a circular table. Circular table, it's a question of circular permutation. तो ये फर्स्ट पार्ट पहले देख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? 20 persons plus one host, total members 21, means 20 persons. इनको अरेंज करना है एक सर्कुलर टेबल में. वी हैव टू अरेंज देम इन ए सर्कुलर. सो सर्कुलर परमुटेशन में जो फॉर्मूला n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो फर्स्ट पार्ट का जो हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 21 माइनस 1 फैक्टोरियल. ओके, सेकेंड पार्ट में, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वे विल 2 पर्टिकुलर पर्सन बी सीटेड ऑन either side of the host. सपोज इसमें 2 ऐसे पर्सन हैं जो होस्ट के, मान लो पर्सन 1 एंड पर्सन 2, दे विल ऑलवेज बी सिटिंग टुगेदर along with होस्ट. तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये आपका होस्ट हो गया, उसके बगल में पर्सन 1 एंड पर्सन 2. इनको एज ए यूनिट वी विल टेक देम एज ए 1 यूनिट. सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 21 माइनस 3 और दे विल कन्वर्टेड टू 1. सो दीज 3 आर कन्वर्टेड टू 1. सो ये प्लस 1. तो टोटल हो गया ये आपका 19 वेज. अब इसको एज ए यूनिट मान लेते हैं, एक पर्सन मान लेते हैं, तो टोटल ऐसा मान सकते हैं कि देयर आर 19 पर्सन एंड वी हैव टू अरेंज देम इन ए सर्कुलर मैनर. सो यहाँ पे कितने हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा 19 माइनस 1 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल. इनका फाइनल आंसर है? नहीं, फाइनल आंसर नहीं है. क्यों? क्योंकि जो पर्सन 1 पर्सन 2 है ये आपस में फ्लिप कर सकते हैं. दे कैन फ्लिप टुगेदर. सो देयर आर फैक्टोरियल 2 वे दे कैन फ्लिप टुगेदर. सो टोटल नंबर ऑफ वेज, जो फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्ट. ये जो आंसर हो गया ये फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके. अब एक केस आता है कि सर्कुलर ही होता है, जैसे वो अरेंजमेंट ऑफ नेकलेस या अरेंजमेंट ऑफ बीड्स इन ए सर्कुलर मैनर. ठीक है, तो बीड्स या नेकलेस या गार्लैंड जब बनाते हैं तो उसमें जब हम लोग बीड्स को यूज करते हैं, तो इस केस में और प्रीवियस केस में डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें सेकंड केस जो बेसिकली हो गया,
अरेंजमेंट ऑफ बीड्स और फ्लावर्स, इसमें सभी ये अज्यूम किया जा रहा है कि सारे बीड्स डिफरेंट हैं या सारे फ्लावर्स डिफरेंट हैं इन अ सर्कुलर मैनर। तो प्रीवियस केस में उस केस में डिफरेंस क्या है? सपोज जैसे n बीड्स हैं या n फ्लावर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू परमुटेट या टोटल नंबर ऑफ वेज टू प्लेस देम इन ए सर्कुलर मैनर ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। लेकिन इस केस में एक डिफरेंस ये होता है कि कोई भी बीड्स, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल सा केस लेता हूँ, मान लीजिए ये आपका ब्लू कलर है, ये आपका ग्रीन कलर है, ये आपका येलो कलर है, ये आपका मान लीजिए वॉलेट, ठीक है। तो ये एक बीड्स का एक अरेंजमेंट हो गया। गारलैंड में या बीड्स से कोई भी चीज़ सर्कुलर मैनर में अरेंज की जा रही है तो इसको आप इस साइड से देख रहे हो या पीछे के साइड से देख रहे हो, बैक साइड से। अगर बैक साइड से कोई देखेगा तो इसको कैसे दिखेगा ये चीज़? इधर उसको ग्रीन दिख रहा है, इधर येलो दिख रहा है, ऊपर ब्लू दिख रहा है और वॉलेट दिख रहा है। तो उसी चीज़ को आप इस साइड से देख रहे हैं, उसी चीज़ को आप पीछे से देख रहे हैं। तो बेसिकली ये दो केस नहीं हो गए। अगर वो टेबल पे बैठते हैं तो टेबल पे दो केस बनते हैं। ये जैसे अगर टेबल पे पर्सन्स होते तो ये दो केस होता है। लेकिन अगर ये इस केस में जब बीड्स या फ्लावर होते हैं तो इसको आप सामने से देखिए, उसी फ्लावर को आप पीछे से भी देख सकते हैं। ये दो केस नहीं होते, ये आपके सिंगल केस होते हैं। तो इसको हम लोग को क्या करना होता है, n-1 फैक्टोरियल को इसमें बाई 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाता है इसमें। ओके, ठीक है। मान लीजिए सपोज देयर इज ए क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में सपोज देयर आर 12 नंबर ऑफ बीड्स, 12 नंबर ऑफ बीड्स एंड how many ways you can construct a necklace, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से 12 आपके टोटल नंबर ऑफ बीड्स हैं तो n की वैल्यू 12 हो गई। तो क्या आंसर हो जाएगा? 12 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 फैक्टोरियल बाई, ओके, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखते हैं कि सपोज देयर आर 21 नंबर ऑफ बीड्स एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ नेकलेस मेक अ नेकलेस। लेकिन इसमें कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है कि जो 3 बीड्स है, 3 बीड्स कोई पर्टिकुलर बीड्स है, 3 पर्टिकुलर बीड्स शुड ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, 21 बीट्स है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3 बीट्स शुड ऑलवेज कम टुगेदर, तो इसको एज ए यूनिट मान लेंगे। तो 21 - 3 उसको 1 मान लिया गया तो +1 कर दिया गया, ये आपका हो गया 19। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 19 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाई 2। लेकिन इसमें जो 3 बीट्स हैं ये एक साथ हैं लेकिन ये आपस में परमुटेट हो सकते हैं, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये 18 फैक्टोरियल और ये आपका 3 × 3, ये आपका आंसर है। एक केस और होता है इसमें कि n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। अब n डिफरेंट थिंग है, इनको सर्कुलर परमुटेशन में रखना है, लेकिन उसमें से एट ए टाइम यू कैन टेक ओनली r, ठीक है। मतलब टेबल पे जो प्लेसमेंट होगा उसमें केवल r रहेंगे। अगर ये लीनियर अरेंजमेंट होता, लीनियर अरेंजमेंट के केस में ये हो जाता आपका NPR, r डिफरेंट, r को एट ए टाइम लेने का n डिफरेंट थिंग में से NPR तरीके हो जाते।
अब इनको आपको टेबल पे अरेंज करना है, तो ये जो आर डिफरेंट जो आर प्लेस किए गए हैं, अब इसको अगर लीनियर में करते, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ए बी सी डी ई, तो 5 केस जैसे मर्ज हो गए थे, 5 केस आपके मर्ज हो गए थे 1 में, ऐसे यहाँ पे जो आर केसेस हैं वो मर्ज हो जाएंगे 1 में, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे एन से डिवाइड किया गया था, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एन से डिवाइड ना करके यहाँ पे हम लोग आर से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ वेव्स हो जाएगा, एन पी आर अपॉन आर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि इफ देयर आर सपोज 24 persons and available seats are 13, we have to arrange in a circular manner. Question है how many ways we can do that. ठीक है, देयर आर टोटल 24 persons, सीट्स कितनी है 13 है, मतलब n की वैल्यू आपकी कितनी है 24, कितने लोग को एट ए टाइम सिट कर सकते हैं उसमें, हाउ मेनी पर्सन कैन सिट टुगेदर 13, तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स जाएंगे, सर्कुलर ऑर्डर में है, सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन बनेगा, ये हो जाएगा एन पी आर डिवाइड बाई आर मीन्स 24 पी 13 डिवाइड बाई, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, 24% की बजाय अगर इंस्टेड ऑफ 24% इफ आई से यू की 24 बीड्स एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ नेकलेस जिसमें 13 बीड्स को लगाना है, ठीक है। नेकलेस में एट ए टाइम जो बीड्स लगेंगे 13 लगेंगे, तो अब कितने तरीके से उस नेकलेस को बनाया जा सकता है, तो इस केस में जो फॉर्मूला हम लगाएंगे एन पी आर बाई आर, जैसे पहले लगाया गया था इसको हाफ किया गया था, तो जो आंसर हो जाएगा आपका इस केस में 24 पी 13 बाई 13 इंटू